हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी। ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे सिलेबस का और इसमें हम डिफरेंट कम्युनिटी में आई डिजीजेस के बारे में स्टडी करते हैं। So first of all, what is community ophthalmology? It is an important branch of community medicine. Its activity emphasizes the prevention of ocular disease and visual impairment, reduction of ocular disability, and promotion of ocular health, quality of life, and efficiency of group of people at the community level. तो जो community ophthalmology है, it basically covers most of the points of ocular disease like prevention and how we can reduce the ocular problems and how can we promote the ocular health, quality of life, and that's how we can basically increase the efficiency of people, because visual impairment result into decreased efficiency of community work efficiency. We can first of all, what is blindness? The definition of, if we stick to the definition of the blindness, then in ophthalmology, the blindness strictly refers to the inability to perceive light, that is PL negative or PL absent. So when there is a zero impulse generation in the retinal tissue, then you can call the person as blind, or it's a total blindness. So this term is strictly for the use in ophthalmology. But what is the definition of this blindness according to WHO? So WHO had said that visual acuity of less than 3/60 or its equivalent. So visual acuity of less than 3/60 or its equivalent, or inability to count finger in daylight at a distance of 3 meters, or visual field less than 10 degree irrespective of the level of visual acuity in the best or in the better eye is called blindness. ओके ऐसा नहीं है कि विजुअल एक्टिविटी अगर एक आई में 3/60 है, दूसरी आई में 6/6 है, देन यू कैन टर्म द पर्सन एज ब्लाइंड, नो. सो इन द बेटर आई, जब भी आपने उसको अगर रिफ्रैक्शन करनी है, उसको चश्मा लगाना है, उसको कोई सर्जरी एडवाइजेबल है ना, तो आफ्टर फुल करेक्शन, आफ्टर फुल एडेड विजन, if the vision of the better eye is less than or equal to 3/60, or finger counting less than 3 meter, and visual field less than 10 degree. So visual field क्या है? Whatever we see from the different जो भी हम सामने से देखते हैं, जो भी हमारे दोनों आईज का, बाइनोकुलर आईज का जो भी सामने का जो एक एक्सटेंट ऑफ विजन है, और इसको हम बेसिकली आइलैंड ऑफ विजन बोलते हैं विजुअल फील्ड को. तो विजुअल फील्ड जो है वो हमारी अलग अलग क्वाड्रेंट में, अगर हम यूनिओकुलर अगर देखें तो क्या है? टेम्पोरली इट इज 90 डिग्री, temporally it is 90 degree, inferiorly it is 60 degree, superiorly and medially it is 50. So because of the this orbital this bony prominence, nasal bridge, and this the superior and the nasal side is having lesser visual field, which is equal to 50 degree, inferiorly it is 60 degree, and temporally it is 90 degree, है ना. So this is for uniocular, है ना, एक आई की जो विजुअल फील्ड है. और अगर हम दोनों आई की विजुअल फील्ड की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट 210 to 220 डिग्री, बिकॉज जब दोनों आईज देखती हैं तो देर इज अ मोर देन 90 डिग्री विजन कैन बी सीन. So that is why जो बाइनोकुलर विजुअल फील्ड है
तो अगर हम जो विजुअल फील्ड चेक करते हैं वो दोनों आईज की ही चेक करते हैं, अलग अलग आईज की चेक करते हैं, तो हम अगर एक आई में 10 डिग्री है विजुअल फील्ड, अगर 10 डिग्री से कम है, यानी कि 10 डिग्री क्या है, मतलब जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड है, यानी मैक्युलर पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड है, विच इज ऑलमोस्ट 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से अगर कम होगी, यानी मैकुला भी इन्वॉल्व हो गया और उसकी जो विजुअल फील्ड है वो जो है उससे 10 सर्कल्स में डिपिक्ट होती है, 5 डिग्री के सर्कल्स होते हैं विजुअल फील्ड के लिए। तो अगर वो जो है 10 डिग्री से कम है, देन इट इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस, है ना। इन द बेटर आई, अगेन आई एम टेलिंग यू, इन द बेटर आई, बिकॉज बेटर आई मीन्स कि जो भी बेस्ट आई है उसकी, है ना, जो वर्सन आई है उसमें इससे भी कम हो सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छी आईज है या आई है उसमें अगर इससे कम है तो दैट इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस। और अकॉर्डिंग टू एनबीसीबी, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, so what he that our Indian government said that blindness is defined as presenting distant visual acuity of less than 6 by 60. So if the visual acuity of better eye is less than 6 by 60, वहां पे क्या था, 3 by 60 था, ठीक है। और यहाँ सेंट्रल विजन विजुअल फील्ड लेस देन 20 डिग्री इन द बेटर आई, अगेन यहाँ पे बेटर आई आ गया, लेस देन 6 by 60 और जो है लेस देन 20 डिग्री। तो हमारा और भी ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इन इंडिया एज पर WHO, इंडिया इज मोर, यू कैन से कि उसका जो एक क्राइटेरिया है वो WHO से थोड़ा सा ब्रॉड है। WHO ने ब्लाइंडनेस एक लेटर स्टेज पे बताया और इंडिया में ब्लाइंडनेस जो है वो पहले ही बता दिया, मीन्स कि 3 by 60 इज लेसर, 6 by 60 इज मोर, एज यू ऑल नो, है ना। तो 3 by 60 पे WHO ने बोला और इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 6 by 60 से नीचे को, या फिर अगर उसकी विजुअल फील्ड लेस देन 20 डिग्री है तब भी, और इन द बेटर आई है, देन इट इज termed as blindness. So blindness have many definition. There may be social blindness, there may be occupational blindness, है ना, total blindness. So this is the broader term कि ये जो है generally this should be considered as blindness. So whenever patient come into the OPD, you should not say कि patient sometimes say that I am not he is not able to recognize anything. So straightforwardly you should not say that person is blind. First you should go for the visual acuity, then eye examination, है ना। if कुछ ऐसा cause है which is untreatable or you cannot treat that cause and it is progressive and the vision is in this parameter, then only you can call it as a blindness. सो कैटेगरीज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, तो हम किस तरीके से विजुअल इम्पेयरमेंट को जो है कैटेगराइज करते हैं, कैसे ग्रेड करते हैं। तो नॉर्मल विजन जो है उसको, जिसका लेवल ऑफ विजुअल एक्टिविटी 0 माना जाता है, 6 by 6 to 6 by 18 है। तो अगर 6 by 6 to 6 by 18 है देन इट इज नॉर्मल विजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO in 1977, ठीक है। व्हाट इज लो विजन? लो विजन में 1 to एक ग्रेड 1 है, फिर ग्रेड 2 है, लेस देन 6 by 60, लेस देन 6 by 18 to 6 by 60 इज लो विजन ग्रेड 1, और अगर लेस देन 6 by 60 to 3 by 60 है लो विजन ग्रेड 2, ठीक है। अगर ये ब्लाइंडनेस आ गया तो, क्योंकि हमने अभी देखा कि लेस देन 3 by 60 है, तो ग्रेड 3 का ब्लाइंडनेस क्या है, लेस देन 3 by 60, फिंगर काउंटिंग एट 3 मीटर टू 1 by 60, FC और फिंगर काउंटिंग एट 1 मीटर, और विजुअल फील्ड बिटवीन 5 डिग्री टू 10 डिग्री, ठीक है। तो लेस देन 3 by 60 to 1 by 60 और विजुअल फील्ड बिटवीन 5 डिग्री टू 10 डिग्री इज ग्रेड 3 ब्लाइंडनेस। और इफ लेस देन 1 by 60 टू लाइट परसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन ऑफ लाइट, और PL जिसको बोलते हैं, और विजुअल फील्ड लेस देन 5 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ग्रेड 4 blindness. And if there is a total blindness, then there is a no light perception,
ठीक है, तो PL नेगेटिव इज ग्रेड 5 लेवल ऑफ विजुअल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू Snellen's चार्ट. So there are two types of blindness. One is avoidable blindness and the another is unavoidable blindness. Avoidable blindness can be of two types: प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस एंड क्यूरेबल ब्लाइंडनेस. एक तो प्रिवेंटेबल है कि जिसको हम रोक सकते हैं, और एक ये है कि जो हो गई, हो सकता है वो टेम्परेरी हो, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम क्यूरेबल ब्लाइंडनेस कहते हैं. द कंसेप्ट ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस इंक्लूड्स बोथ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस एंड क्यूरेबल ब्लाइंडनेस. सो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इज दैट which can be easily prevented by attacking the causative factor at an appropriate time. For example, corneal blindness due to vitamin E deficiency. अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाएगी पेशेंट को. आपने विटामिन ए डेफिशिएंसी को सप्लीमेंट कर दिया, विटामिन ए पेशेंट को दे दिया, देन it can be prevented. So that is why it is called preventable blindness. कि आपने, या फिर ट्रैकोमा की वजह से, अगर हम ट्रैकोमा की वजह से उसको जो है ब्लाइंडनेस हो रही है, ट्रिकेसिस होता है ट्रैकोमा में, जो कि बार बार कॉर्नियल अल्सरेशन करता है. अगर आपने ट्रैकोमा का ट्रीटमेंट दे दिया, सल्फासिटामाइड वगैरह दे दिया आपने, टेट्रासाइक्लिन दे दिया, तो क्या होगा कि ये ठीक हो जाएगी. तो ये प्रिवेंटेबल है, मतलब आपने ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर आप ट्रीट ना करें, ठीक है, लेकिन आपने टाइमली जो है उसको प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस बना दिया. क्यूरेबल ब्लाइंडनेस है कि जैसे कि इसमें थोड़ी सी हम टेम्परेरी ब्लाइंडनेस देखते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट है. तो कैटरैक्ट में क्या है कि आप कैटरैक्ट है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हुई, आपने सर्जरी कर दी तो वो ठीक हो गई, तो ये क्यूरेबल ब्लाइंडनेस है. ठीक है, जब वहां पे टेम्परेरी और सर्जिकल इंटरवेंशन से ठीक हो जाएगी, दैट इज कम अंडर अवॉइडेबल blindness. So another, what are the main causes of blindness? There are lots of causes of blindness. तो हमें पता करना है कि क्या क्या कॉजेज होते हैं ब्लाइंडनेस के. तो बेसिकली आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि विजन के लिए, फॉर आवर विजन, the three structure, main structure which is responsible for vision, first is cornea and second is lens and third is retina. तो ये तीनों अगर इंटीग्रेटेड हैं और आगे जो है विजुअल ट्रैक्ट इंटीग्रेटेड बिल्कुल ठीक है, तो फिर ब्लाइंडनेस नहीं होगी. तो जो भी कारण होगा, या तो ब्लाइंडनेस का जो भी कॉज होगा वो या तो लेंस में होगा, या कॉर्निया में होगा, या रेटिनल टिश्यू में होगा, या फिर वो जो है विजुअल ट्रैक्ट में होगा. तो क्या क्या कॉजेज हैं? पहला है कैटरैक्ट, सेकंड इज ग्लूकोमा, ये कैटरैक्ट लेंस की प्रॉब्लम हो गई, ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथी हो गई. फिर अब मैंने बताया था कॉर्निया स्कारिंग हो गई, एज रिलेटेड मैक्रोलेजिया अगेन रेटिनल डिजीज है, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगेन रेटिनल डिजीज है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस इंक्लूडिंग जीरोप्थेल्मिया भी हमने प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस की बात करी थी. विटामिन ए डेफिशिएंसी के बाद अगर वो ज्यादा आगे बढ़ती है तो नाइट ब्लाइंडनेस और बाकी सब कुछ होता है, वो भी जो है अगर ये भी ब्लाइंडनेस का कॉज है. और ऑन्कोसीरियसिस, ये हम आगे बताएंगे व्हाट इज ऑन्कोसीरियसिस. तो जो इन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो, मतलब मेन टॉप 10 कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस में डिफरेंस है. कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस सेम है, बट डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो नंबर 1 पे ग्लूकोमा एटसेट्रा आता है, और जो है हमारे यहाँ कैटरैक्ट वगैरह का ओवरलोड इतना है कि वहाँ पे ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा मिलती है. तो इन डेवलप्ड कंट्रीज 50% ऑफ ऑल ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ ARMD, while another 10 to 20% is because of glaucoma, diabetic retinopathy and cataract. तो वहाँ पे कैटरैक्ट का जो नंबर है वो हमारे यहाँ से बहुत बाद में है, बट in our country the cataract is the, I think the first or second cause of this blindness, because क्या है, इतना वर्कलोड है, इतना बैकलॉग है कैटरैक्ट सर्जरी के लिए कि अभी हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाए. इन डेवलपिंग कंट्रीज द फ्रीक्वेंट कॉज आर कैटरैक्ट, इन्फेक्शियस डिजीज, जीरोप्थेल्मिया, वहाँ पे जीरोप्थेल्मिया नहीं होगा, विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं मिलती है, इंजरीज हैं, ग्लूकोमा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस है, और अलग अलग अपने कंट्री के हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना है.
ठीक है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, क्या क्या ग्लोबली इनिशिएटिव हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए, क्योंकि WHO जो है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट जो डिजीजेज हैं या डिफरेंट स्पेशलिटी हैं या डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं उसको अलग अलग तरीके से उसके लिए प्रोग्राम बनाती है कि अगर हम आई की बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या क्या चीजें करनी है। तो WHO ने एक 1978 में एक प्रोग्राम बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये था कि तब ट्रैकोमा और कैटरैक्ट ये सब चीजें इतनी ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का एक प्रोग्राम बनाया ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं। फिर एक प्रोग्राम 1999 में आया कि विजन 2020 द राइट टू साइट। राइट टू साइट जो है वो अभी भी टारगेट था 2020, बट आई डोंट थिंक दैट WHO have succeeded in that their target because of some जो है country wise there may be some global problem or some local problems, है ना। और in 2001 में विजन फॉर द फ्यूचर, ये तीन प्रोग्राम मेन प्रोग्राम हैं जो WHO ने प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए ग्लोबली लॉन्च करे हैं। तो कंट्रोल स्ट्रेटजी सजेस्टेड बाय WHO इंक्लूड assessment of common blinding disorder at local, regional and national level। ठीक है, तो जो भी ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको उनका लोकल, रीजनल एंड नेशनल असेसमेंट जो है वो करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेवल प्रोग्राम, जैसे हमारे यहाँ NBCB है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस सूटेड टू द नेशनल एंड लोकल नीड्स। अब हमारी लोकल नीड्स अलग हैं, हमारी नेशनल नीड्स अलग हैं, तो उसके हिसाब से हमारे को अपना जो ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है उसको अपना रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात आएगी ट्रेनिंग ऑफ आई केयर प्रोवाइडर्स। तो अगर कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कहीं पे देनी है, कोई न्यू रिसर्च हुई, कोई न्यू एडवांसमेंट हुई, तो उसके लिए हमारे को ट्रेनिंग ऑफ आई केयर प्रोवाइडर्स जरूरी है। तो वो भी ये जो है WHO की स्ट्रेटेजी है। और फिर ऑपरेशनल रिसर्च टू इम्प्रूव एंड अप्लाई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑल दीज कम्स अंडर द दिस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। So what is Vision 2020? The right to sight. So Vision 2020 is a global initiative launched by WHO in Geneva on February 18th, 1999. So partner of Vision 2020 are राइट टू साइट का जो पार्टनर्स हैं वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड टास्क फोर्स ऑफ इंटरनेशनल एनजीओस। जो भी इंटरनेशनल एनजीओस की टास्क फोर्स है वो इनके जो है पार्टनर्स हैं। Objective of Vision 2020 is to eliminate avoidable blindness by the year 2020 and to reduce the global burden of blindness। जो avoidable blindness है, चाहे वो preventable है चाहे वो curable है ना। अब जो प्रिवेंटेबल नहीं है, जो क्यूरेबल नहीं है, उसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। तो अवॉइडेबल जो ब्लाइंडनेस है उसको ही हमें रिड्यूस करना है बाय द ईयर 2020। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विजन 2020। स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ विजन 2020, राइट टू साइट, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज विजन 2020? इट इज अ राइट टू साइट। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी है। तो यहाँ पे हमें राइट टू साइट है। इट इज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डिजीज को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है। जैसे ट्रैकोमा जो है अब हमारी कंट्रीज में काफी हद तक जो है प्रिवेंट हो गया, कंट्रोल हो गया है। तो इसकी पहले हमें बहुत 90s में जो है बहुत ज्यादा ट्रैकोमेटिस पेशेंट्स थे। ट्रेनिंग ऑफ आई हेल्थ पर्सनल्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कि मान लीजिए कहीं पे डॉक्टर्स का स्टाफ ज्यादा है, मशीनरी ज्यादा है, फंडिंग ज्यादा है, वहां से कैसे हम उसको मूव करके जहाँ पे नीड है वहां पे हम उसको कैसे पहुंचा सकते हैं। ये सब कुछ विजन 2020 के अंदर राइट टू साइट में आता है। उसके बाद डिजीज, सबसे पहला पॉइंट था डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए ग्लोबली WHO हैज आइडेंटिफाइड 5 मेजर ब्लाइंडिंग आई कंडीशन फॉर immediate attention to achieve the goal of Vision 2020, which are first of all cataract,
सेकंड इज चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ज्यादातर मैंने बताया है तो जीरोथेल्मिया से होती है या फिर और डेफिशिएंसीज से होती है, या फिर ग्लूकोमा की वजह से भी चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस मिलती है। तो ट्रैकोमा है, रिफ्रैक्टिव एरर एंड लो विजन है। सम टाइम व्हाट हैपन कि ओनली द पेशेंट नीड ग्लासेस, बट कभी वो जैसे स्पेशली आई हैव सीन इन रूरल एरियाज एंड इन रिमोट एरियाज और ट्राइबल एरियाज कि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है और पेशेंट की विजन जो है 6/60 है विदाउट जो है ग्लासेस, बट उसको पता ही नहीं है कि उसको ग्लासेस चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि वहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी हो, कुछ हो, तो वहाँ पे जाके उसको ग्लासेस देने हैं। वो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, ग्लासेस ये ठीक हो गया, उसमें कुछ ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे भी केसेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं कि छोटी सी डिजीज के लिए और पेशेंट जो है सफर कर रहा है। तो दीज आर द फ्यू जो 5 मेजर ब्लाइंडिंग आई कंडीशंस है, जिसको WHO ने कहा कि नहीं, हमारे को सबसे पहले इन चीजों को देखना है क्योंकि ये बहुत इजी है और इजीली टारगेटेबल है ना। हम उसको आराम से टारगेट कर सकते हैं बाय गिविंग सम इंटरवेंशन और सब कुछ। तो पहला नंबर है कैटरैक्ट का। तो कैटरैक्ट क्या है? व्हाट इज कैटरैक्ट? कैटरैक्ट इज नथिंग बट ए ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस, है ना। इफ एनी ओपेसिफिकेशन, छोटे से लेंस फाइबर की ओपेसिफिकेशन भी कैटरैक्ट के अंदर में आती है, बट व्हेन इट कॉज प्रॉब्लम इन विजन देन इट इज नीड टू बी intervened and surgery is required. So cataract remains the single largest cause of blindness, especially in the developing countries. तो जितने भी टोटल जो वर्ल्ड वाइड ब्लाइंड पीपल हैं उसमें से 39% आर ब्लाइंड जस्ट ड्यू टू द कैटरैक्ट। ठीक है, तो एम अंडर विजन 2020 is to eliminate avoidable blindness due to cataract by the year 2020 by performing cataract extraction and intraocular lens implantation. Strategies to achieve the aim to measure the increase in the cataract surgery rate. क्या strategy है? Emphasis is to be placed on achieving high success rate in terms of restored vision and quality of life outcome. Affordable and accessible service, measure to overcome barriers and increase use of services. So these are the main disease. The first disease which needs to be addressed is कैटरैक्ट, एंड द सेकंड वन इज चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। तो चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के कॉजेज जो है वो नंबर 1 विटामिन ए डेफिशिएंसी, नंबर 2 इज मीजल्स, conjunctivitis, ophthalmioneuroterum, congenital cataract and retinopathy of prematurity. So aim, what is the aim? Is to eliminate avoidable cause of childhood blindness by the year 2020. Strategies क्या है इसके लिए? Strengthening primary eye care program within primary health care to eliminate preventable causes. Developing therapeutic and surgical support services to deal effectively with curable eye problems. Establishing optical and low vision services, है ना। हर जगह लो विजन सर्विसेज होनी चाहिए ताकि जो है अगर उसको कोई लो विजन एड्स चाहिए या और तरीके के स्पेशलाइज्ड जो है ग्लासेस चाहिए तो वो उसको मिल सके। तो एक्टिविटीज क्या हैं इसमें? एलिमिनेशन ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस बाय measles immunization, vitamin A supplementation, which is included in our national health program. Monitoring use of oxygen in the premature newborn, है ना, ROP के लिए avoidable of harmful traditional practice. Promoting school screening program for diagnosis and management of common condition like refractive errors, trachoma. schools में different camps जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है अपने लोकल लेवल पे। और आई हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, आई की हेल्थ को हमें कैसे ठीक रखना है उसके लिए भी एजुकेशन की जरूरत है। मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल अवॉइडेबल कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस सच एज कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये सब अगर उसको मान लीजिए कैटरैक्ट है या ग्लूकोमा है या आरओपी है तो उसकी सर्जरी करके उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। ये हमारा जो है एक्टिविटीज हैं या स्ट्रेटजीज हैं। तो अभी ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो माय कॉल इज टू दैट यू शुड गो थ्रू ऑल द एस्पेक्ट्स और ऑल द स्ट्रेटजीज, ऑल द डिजीजेस, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द डिजीजेस यू शुड नो, ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आए। और अभी तक जो भी है इसके जो भी इसका डिटेल है वो आपको पढ़ना है।
और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।